dear students, how are you? Today I will revise word meaning and question answer in chapter 4, food from plants, in science subject. So let's we start, students. Classes first, lesson 4. Our chapter name is food from plants. पौधों से भोजन. Lesson 4. Heading is word meaning. WORD, word, MEANING, meaning, word meaning. First word is fruit, FRUITS, fruits. Fruits means फल. Fruit, FRUIT, fruit means फल. Next is vegetable, VEGETABLE, vegetable. Vegetable means sabji, sabji, vegetable, sabji. Next is cereal, CEREAL, cereal. Cereal means अनाज, ANAJ, अनाज. Next is pulses, PULSES, pulses. Pulses means दालें. Pulses means दालें. दालें, pulses means दालें. Next is seed, SEED, seed. Seed means बीज, BEJ, बीज. Seed means बीज, BEJ, बीज. Next is turnip, TURNIP, turnip. Turnip means saljam, TURNIP, turnip means saljam. Next is spinach, SPINACH, spinach. Spinach means palak. Spinach means palak. I repeat again, dear student. Fruit, फल. Fruit means फल. Vegetable, sabji. Vegetable means sabji. Cereal, अनाज. Cereal means अनाज. Pulses, दालें. Pulses means दालें. Seed, seed means बीज. Seed means बीज. Turnip, turnip means सलजम. Turnip means सलजम. Spinach, पालक. Spinach means पालक. Now we revise lesson 4 question answer. Okay. Question first is, what are some different foods we get from plants? ऐसे भोजन, कुछ अलग भोजन जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो क्या हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ एंड पल्सेस दालें. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सीरियल्स? सीरियल मीन्स अनाज. अनाज क्या है? आंसर इज सीरियल्स आर obtained from plant which are eaten as food. Cereal are obtained from plant which are eaten as food. जो सीरियल है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं. सीरियल्स, CEREAL, सीरियल्स आर obtained. आप ग्रुप बनाइए. सीरियल आर obtained from plant. Cereal are obtained from plant which are eaten as food. Cereals are obtained from plant which are eaten as food. Okay, now next question is, which parts of plant do we eat when we eat spinach and cabbage? Which parts of plants do we eat when we eat spinach and cabbage? spinach, पालक और पत्ता गोभी खाते हो आप, तब आप पौधे का कौन सा पार्ट खाते हो? आंसर, राइट आंसर इज लीव्स, LEAVES, लीव्स, पत्तियाँ. जब हम कैबेज और स्पिनच खाते हैं तो उसके हम लीव्स वाले पार्ट, पत्तियों वाले पार्ट को खाते हैं. सो राइट आंसर इज लीव्स, LEAVES, लीव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम सीड्स दैट वी ईट? व्हाट आर सम सीड्स दैट वी ईट? कुछ ऐसे बीज जिन्हें हम खाते हो क्या हैं? आंसर इज पीस, wheat, corn and rice. PEAS, peas. WHEAT, wheat.
CORN, corn, and rice, RICE, rice. What are some seeds that we eat? Peas, wheat, corn, and rice. मटर, गेहूँ, मक्का और चावल ऐसे बीज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं. Okay dear students, our question answer and word meaning is complete. I hope you will understand dear students. आप इनका रिवीजन साथ साथ वीडियो के साथ साथ करते रहें जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले. ओके बेटा, थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Good morning students, I am Sonayan, your SS teacher from first class. Today I take chapter number 4, word meaning. WORD word, MEANING meaning. Word meaning means शब्द are. तो नंबर फर्स्ट है हमारा रोल, ROLE, रोल. ROLE, रोल. रोल means भूमिका. रोल means भूमिका. रोल मीन्स ROLE, रोल मीन्स भूमिका. रोल मीन्स भूमिका. नंबर सेकंड है हमारा स्पेशल, SPECIAL. स्पेशल मीन्स विशेष. स्पेशल मीन्स विशेष. स्पेशल मीन्स विशेष. SPECIAL, स्पेशल. स्पेशल मीन्स विशेष. स्पेशल मीन्स विशेष. नंबर थर्ड है हमारा मेजर, MAJOR, मेजर. MAJOR, मेजर. मेजर मीन्स प्रमुख. मेजर मीन्स प्रमुख. मेजर मीन्स प्रमुख. MAJOR, मेजर. मेजर मीन्स प्रमुख. मेजर मीन्स प्रमुख. नंबर फोर्थ है हमारा फुलफिल, FULFILL. FULFILL. फुलफिल मीन्स पूरा. फुलफिल मीन्स पूरा. फुलफिल मीन्स पूरा. FULFILL, फुलफिल मीन्स पूरा. नंबर 5 है हाउस होल्ड, HOUSE, हाउस. HOLD, होल्ड. हाउस होल्ड मीन्स गृहस्थी. Household means grasthi. Household means grasthi. HOUSE, house. HOLD, hold. Household means grasthi. Household means grasthi. Okay, next है number 6. Number 6 है respect, RESPECT. Respect. Respect means आदर. Respect means आदर. Respect, RESPECT. Respect means आदर. Respect means आदर. अब है नंबर 7. नंबर 7 है sick, SICK, sick. SICK, sick. Sick means बीमार. Sick means बीमार. Sick means बीमार. SICK, sick. Sick means बीमार. Sick means बीमार. अब है नंबर 8. नंबर 8 है केयर, CARE, केयर. CARE, केयर. केयर मीन्स देखभाल. केयर मीन्स केयर मीन्स देखभाल. देखभाल क्या होता है? CARE, केयर. केयर मीन्स देखभाल. केयर मीन्स देखभाल. आई विल बी रिपीट अगेन. आई विल डू चैप्टर नंबर 4, वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ. नंबर फर्स्ट इज रोल, ROLE, रोल. ROLE, रोल. रोल मीन्स भूमिका. रोल मीन्स भूमिका. नंबर सेकंड है स्पेशल, SPECIAL. स्पेशल मीन्स विशेष. स्पेशल मीन्स विशेष. नंबर थर्ड है मेजर, MAJOR. मेजर. मेजर मीन्स प्रमुख. मेजर मीन्स प्रमुख. नंबर 4 है फुलफिल, FULFILL. फुलफिल मीन्स पूरा. फुलफिल मीन्स पूरा. नंबर 5 है हाउस होल्ड, HOUSE, हाउस. HOLD, होल्ड. हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मीन्स गृहस्थी. हाउस होल्ड मीन्स गृहस्थी. नंबर 6 रिस्पेक्ट, RESPECT. रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मीन्स आदर.
रिस्पेक्ट मीन्स आदर। नंबर 7 है सिक, SICK सिक, SICK सिक, सिक मीन्स बीमार, सिक मीन्स बीमार। अब है नंबर 8, नंबर 8 है CARE केयर, केयर मीन्स देखभाल, केयर मीन्स देखभाल। देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर मीन्स प्रश्न और उत्तर। आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 WRITE, राइट 3 TH, राइट 3 THREE, 3 things THINGS, things THAT, that YOUR, your, MOTHER, mother, DOES, does, FOR, for, family, FAMILY। Write 3 things that your mother does for family, कि 3 चीजें लिखो जो आपकी मम्मी आपके परिवार के लिए करती है। आंसर इज नंबर फर्स्ट है मदर कुक्स फूड, MOTHER, मदर, COOKS, कुक्स, FOOD, फूड, MOTHER, मदर, COOKS, कुक्स, FOOD, फूड, मदर कुक्स फूड, कि हमारी माता जी हमारे लिए खाना पकाती है। नंबर 2, मदर्स वॉशेज क्लोथ, MOTHER, मदर, WASHES, वॉशेज, CLOTHES, क्लोथ्स, MOTHER, मदर, WASHES, वॉशेज, CLOTHES, क्लोथ, मदर वॉशेज क्लोथ्स, की माता जी हमारे कपड़े साफ करती है। नंबर 3 है मदर्स क्लीन्स हाउस, MOTHER, मदर, CLEAN, क्लीन, हाउस, HOUSE, हाउस, MOTHER, मदर, CLEAN, क्लीन, HOUSE, हाउस, मदर क्लीन हाउस, की माता जी घर को साफ करती है। आई विल बी रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। राइट 3 थिंग्स दैट योर मदर डज फॉर फैमिली, कि आपकी माता जी आपके परिवार के लिए कौन से 3 काम करती है। नंबर 1 है मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, की माता जी हमारे परिवार के लिए खाना बनाती है। नंबर 2 है मदर वॉशेज क्लोथ, की माता जी हमारे परिवार के कपड़े भी धोती है। नंबर 3 है मदर क्लीन हाउस, की माता जी हमारे पूरे घर को साफ करती है। सेकंड क्वेश्चन इज हु अर्न्स मनी फॉर यू, WHO, EARNS, अर्न्स, MONEY, मनी, FOR, for, YOU, हु अर्न्स मनी फॉर यू, कि आपके लिए पैसे कौन कमाता है। करेक्ट आंसर इज फादर, FATHER, फादर, EARNS, अर्न्स, MONEY, मनी, FOR, for, YOU, FATHER, फादर, EARNS, अर्न्स, MONEY, मनी, FOR, for, YOU, फादर अर्न्स मनी फॉर यू, कि पिताजी हमारे लिए पैसे कमाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हु लुक्स आफ्टर द हाउस, WHO, LOOKS, लुक्स, AFTER, आफ्टर, THE, द, HOUSE, हाउस, हु लुक्स आफ्टर द हाउस, कि तुम्हारे घर की देखभाल कौन करता है। करेक्ट आंसर इज MOTHER, मदर, LOOKS, लुक्स, AFTER, आफ्टर, THE, द, HOUSE, हाउस, मदर लुक्स आफ्टर द हाउस, की माता जी हमारे घर की देखभाल करती है। आई विल बी रिपीट अगेन क्वेश्चन नंबर 2, हु अर्न्स मनी फॉर यू, कि आपके लिए पैसे कौन कमाता है। आंसर इज फादर अर्न्स मनी फॉर यू,
FATHER father, EARNS earns, MONEY money, FOR for YOU father earns money for you कि पिताजी हमारे लिए पैसे कमाता है। नंबर 3 है क्वेश्चन, Who looks after the house? Who looks after the house? कि हमारे घर की देखभाल कौन करता है? करेक्ट आंसर इज मदर looks after the house. MOTHER mother, LOOKS looks, AFTER after, TH the, HOUSE house. मदर looks after the house की माता जी हमारे घर की देखभाल करती है। देखो बेटा अभी मैंने चैप्टर नंबर 4 के वर्ड मीनिंग कराए हैं और देन क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 3. तो डू इन योर एसेस फेयर नोटबुक. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Hello dear students, how are you? Today I will read chapter 5, Frog is at school, in English reader. So let's start dear student. Class is first. Our 5th chapter name is Frog is at school. Okay. 20 frogs went to school. 20 मेंढक स्कूल गए. Down beside a रस्सी पुल, एक भीड़ भरे पुल के नीचे. 20 frogs went to school. 20 मेंढक स्कूल गए. Down beside a रस्सी पुल, एक भीड़ भरे पुल के नीचे. 20 little coats of green, हरे रंग के छोटे कोट्स. जो 20 है वो सभी 20 little coats of green. 20 vests all white and clean. जो 20 है लिटिल वो कोट्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन कलर के कोट्स में. एंड 20 वेस्टेस ऑल वाइट एंड क्लीन, और जो उनकी 20 हैं वो सभी सफ़ेद और साफ रंग के हैं, बिल्कुल सफ़ेद और साफ हैं. वी मस्ट बी इन टाइम सेड दे, फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले. ये कहते वी मस्ट बी इन टाइम, हम स्टडी करेंगे और फिर हम खेलेंगे. कहते हैं कि हम समय के बहुत ही पंचुअल हैं. वी मस्ट बी इन टाइम सेट दे, फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले. हम पहले पढ़ाई करते हैं फिर खेलते हैं. कौन कहते हैं? 20 फ्रॉगीज. दैट इज हाउ वी कीप द रूल. ये उनका नियम होता है. किनका? मेंढक का. यही कारण है कि वे अपने नियम रखते हैं. व्हेन वी फ्रॉगीज गो टू स्कूल, जब हम मेंढक स्कूल जाते हैं. क्या कहते हैं? जब हम मेंढक स्कूल जाते हैं. 20 फ्रॉगीज वेंट टू स्कूल डाउन बिसाइड ए रस्सी पुल. 20 मेंढक स्कूल जाते हैं और एक भीड़ भरे पुल के नीचे. 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन, 20 वेस्टेस ऑल वाइट एंड क्लीन. जो 20 लिटिल्स हैं वो सभी ग्रीन कलर के कोट्स हैं. 20 वेस्टेस ऑल वाइट एंड क्लीन, और जो 20 वेस्टेस है उनके वो सभी सफ़ेद और क्लीन हैं, साफ हैं. वी मस्ट बी इन टाइम सेट दे, फर्स्ट दे वी स्टडी देन वी प्ले. वी मस्ट बी इन टाइम, वह सभी समय से कहते हैं, समय से करते हैं सब कुछ. सभी पहले खेलते हैं एंड फिर नहीं, पहले पढ़ाई करते हैं फिर खेलते हैं. दैट इज़ हाउ वी कीप द रूल, इस तरह अपना नियम रखते हैं. व्हेन वी फ्रॉगीज गो टू स्कूल, जब हम मेंढक स्कूल जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोएम फ्रॉगीज एट स्कूल. नाउ वी रिवाइज book exercise. Okay, question number first is choose the correct option. Blank froggies went to school. कितने froggies गए थे? 20. Next, vestes were all blank and clean. कैसे थे vestes उनके? White. Next is first they blank and then we play. पहले खेलने से पहले क्या करते थे? Study. Next, they follow the rule. वो नियम का follow करते थे. ओके, नेक्स्ट इज मैचअप. मैचअप में बेटा 20 फ्रॉगीज कहाँ गए थे? वेंट टू स्कूल. सो मैच द 20 फ्रॉगीज वेंट टू स्कूल. नेक्स्ट कोट्स ऑफ ग्रीन, सभी कोट्स क्या थे उनके? ग्रीन. तो मैच ग्रीन. वेस्टेस ऑल वाइट एंड क्लीन. एंड लास्ट वी कीप द रूल, वो अपने नियम रखते थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, our book chapter reading 20 froggies is complete and correct option and matchup is complete. I hope you will understand dear students. Dear student, matchup और choose the correct option आप अपनी बुक से रिवाइज करें, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी. ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.
Good morning student. Welcome to MLP YouTube channel. I Sima from MLP International School Rajpura. Student, in the last video we did completed our exercise chapter number 8 and now today we will start revision of chapter number 5 subtraction up to 10. Okay. So बेटा जब हमने रिवीजन कराया था तो इस चैप्टर का हमारा बचा हुआ था, इसको रिवाइज कर रहे हैं. ओके हमारा चैप्टर नंबर 5 है सब्ट्रैक्शन अप टू 10 नंबर तक सब्ट्रैक्शन करना है. सो देखो टेकिंग अवे ए नंबर की टेकिंग अवे मीन्स क्या होता है, दूर ले जाना. टेकिंग अवे नंबर फ्रॉम अनदर नंबर, ये एक नंबर से दूसरे नंबर को दूर ले जाना क्या बोलते हैं उसको बेटा सब्ट्रैक्शन. ओके ये जो हमारा साइन है ये कौन सा किस चीज़ का साइन है, सब्ट्रैक्शन का. ओके सब्ट्रैक्शन को हम घटा भी बोलते हैं. ओके सो देखो बेटा सम पिक्चर्स आर गिवन हियर, ये हमारे पास टेडी बियर की पिक्चर दी हुई है. सो देखो कितने टेडी बियर है ये, 1 2 3 4 5 6. टेकन अवे कितने निकाल लिए, 1 2 3. कितने दूर गए बेटा, 3. तो इसमें से ये 3 चले गए तो कितने बचे गए, नेक्स्ट 3 चले गए. अब कितने बचे, 1 2 3. तो लीव्स कितने हो गए, 3. ओके सो ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज है बेटा. सो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.1. काउंट एंड राइट हाउ मैनी आर लेफ्ट. काउंट करो, ये बताओ कि कितने बचे हुए हैं. सो बेटा देखो यहाँ पे ये स्पैरो की पिक्चर बनी हुई है. अब देखो कितने स्पैरोज है ये, 1 2 3 4 5 6 7. कितने स्पैरोज है बेटा हमारे पास, 7 स्पैरोज. ओके एंड टेकन अवे कितने दूर गए, 1 2. अब लीव्स मीन्स कितने बचे हुए हैं. तो देखो ये हमारे 7 थे, इसमें से 2 निकल गए. तो अब बताओ कितने बचे, 1 2 3 4 5. कितने बचे बेटा, 5. 1 2 3 4 5. ओके अब ऐसे ही ये फिशेज हैं, देखो कितने फिशेज हैं, 1 2 3 4 5 6. कितने फिशेज है बेटा यहाँ पे हमारे पास 6. अब जो ये स्वान कितने फिश ले गया, 1. तो अब लीव्स कितने रह गए बेटा, देखो 1 ये निकल गया, 1 2 3 4 5. कितने बचे हुए यहाँ पे, 5. ओके अब नेक्स्ट है ये एरोप्लेन की पिक्चर है. देखो कितने एरोप्लेन है बेटा, 1 2 3 4 5 6. कितने एरोप्लेन हमारे पास, 6. टेकन अवे कितने दूर गए 1 2 3 4. तो अब लीव्स कितने मतलब कितने बचे हुए हैं, तो देखो 6 यहाँ से 4 चले गए, 1 2 3 4 चले गए. अब कितने बचे हमारे पास, 1 2. सो हमारे पास कितने लीव्स हैं, 2. ओके सो ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 इज कंप्लीटेड. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 0. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर. कि जब हम किसी भी नंबर में से 0 जो होता है नंबर होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग नंबर क्या होता है, सेम. जो रिमेनिंग नंबर आएगा कि 3 में से 0 लेस किए तो 3 रहेगा, 4 में से 0 लेस किया 4, 2 में से 0 लेस किया 2, 1 में से 0 लेस किया तो 1. ओके सो बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर है अब 5.2 सब्ट्रैक्ट द नंबर. कि हमारे 3 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, कितने बचेंगे बेटा, 3. एग्जाम्पल देखो, देयर आर 2 मैंगोज ऑन ए ट्री. जो ये मैंगो का ट्री है इस पे कितने मैंगोज हैं, 2. राहुल थ्रो ए स्टोन ऑन एंड टू ब्रेक 1 मैंगो. राहुल ने एक जो स्टोन होता है पत्थर होता है वो मैंगो के क्या किया, फेंक के मारा, थ्रो किया, फेंका. बट नो मैंगोज फॉल. कि मैंगो तोड़ने के लिए एक स्टोन को फेंका पर एक भी स्टोन जो है वो मैंगो नहीं गिरा. तो क्या करेंगे इसको हम, 2 में से देखो 2 मैंगोज थे, एक भी नहीं नीचे गिरा तो हमारे पास कितने रह गए, ऊपर 2 ही रह गए. ओके सो अब नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 5.2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. कि जो नंबर दिए उनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3 में से 0 लेस करेंगे तो बेटा हमारे पास 0, जब हम किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, सेम नंबर रहेगा. ओके 3 में से 0 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
3, 4 में से 0 लेस करेंगे 4, 8 में से 0 लेस करेंगे 8, 7 में से 0 लेस करेंगे 7, 9 में से 0 लेस करेंगे 9, ओके। 6 में से 0 लेस करेंगे तो हमारा क्या रहेगा 6। अगर हम किसी भी नंबर में से हम 0 जो है वो लेस करेंगे तो हमारा नंबर क्या रहेगा बेटा, इटसेल्फ सेम रहेगा कि जैसे 7 में से 0 लेस किया तो 7, 9 में से 0 लेस किया 9, 6 में से 0 लेस किया 6, ओके। अब 1 में से 0 लेस करेंगे तो 1 एंड 5 में से 0 लेस करेंगे तो 5। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो देखना है। एग्जाम्पल देखिए, सब्ट्रैक्ट करनी है 3 में से 8 ऑन नंबर लाइन। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, उस पर ऐसे नंबर 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, ओके। अब हमें 5 में से एग्जाम्पल है, हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, कितने स्टेप लेंगे, 5 स्टेप 1 2 3 4 5। 0 से हम कितने स्टेप लेंगे बेटा, 5 स्टेप। एंड हमें कितने वो करने हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट 3 करने हैं। तो 5 में से हम 3 स्टेप वापस लेंगे, 1 2 3। तो हम स्टेप वापस लेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे बेटा, 2 पे। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक लाइन ड्रॉ करोगे 0 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हमें क्या करना है कि 4 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0 हम स्टेप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, 0। और 0 से कितने स्टेप, 4 स्टेप 1 2 3 4। 0 से हम 4 पे जाएंगे एंड हमें सब्ट्रैक्ट कितने करना है बेटा, 1। तो 4 से अब हम 1 स्टेप वापस लेंगे। तो देखो 4 से 1 स्टेप कितने पे आएगा बेटा, 3 पे। सो आवर आंसर इज क्या होगा 3। 4 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, ओके। सो अब हमारी एक्सरसाइज है बेटा 5.3, सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो हमारा बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, 0। और 0 से कितने स्टेप लेने हैं, 9 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप लेंगे हम। एंड देन अब हमें क्या करना है, बैक में कितने स्टेप लेना है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 9 होगा और हमें कितने स्टेप लेने हैं, 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 स्टेप में हम कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, 3 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 में से अगर हम 6 लेस करेंगे तो 3। हमारा आंसर इज कौन सा होगा बेटा, 3, ओके। अब है 5 में से 1 लेस करना है, तो 0 ये है और 0 में से हमें कितने स्टेप चल लेना है बेटा, 1 2 3 4 5। 0 से हम 5 स्टेप लेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमें बैक में कितने स्टेप लेने, वापस में 1 स्टेप, क्योंकि कितना माइनस करना है बेटा हमें, 1 माइनस करेंगे तो हम कितने पे आ गए, 4 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अब नेक्स्ट है 8 में से 5 लेस करना है, तो हम बेटा 0 से कितने स्टेप लेंगे, 8 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो 0 से हमने 8 स्टेप लेंगे एंड बैक में कितने स्टेप होंगे हमारे, 5 1 2 3 4 5। सो 8 से अब हम किस में आएंगे, 3 पे। हमारा क्या होगा, तो 8 में से बेटा अगर हम 5 लेस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3, ओके। अब है 9 में से 4 लेस करना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और कितने स्टेप लेंगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप से हम कहाँ पे पहुँच गए, 0 से 9 पे। अब हमें बैक में कितने स्टेप लेने हैं, 4 स्टेप
1 2 3 4। सो हम 4 स्टेप लेंगे तो अब हम किस पे है बेटा 5 पे। तो 9 में से अगर हम 4 लेस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा 5। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में से 2 लेस करना है तो 0 से 6 स्टेप लेंगे 1 2 3 4 5 6। 0 से 6 अब हमें कितने लेस करने हैं 2 1 2। तो अब हम 6 से कितने आएंगे 2 स्टेप लेंगे 1 2। सो नाउ वी आर एट 4। तो 6 में से 2 लेस करेंगे तो हमारा आंसर ही 4 होगा। अब 3 में से 1 लेस करना है तो देखो 0 1 2 3 सॉरी 0 स्टार्ट करेंगे और हमारा स्टार्ट 1 2 3। हम 3 पे आ गए। सो 3 स्टेप लेने के बाद अब हमें बैक में कितने स्टेप लेने हैं बेटा 1। अब हम 1 स्टेप लेंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे हम 2 पे। ओके। सो 3 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 2। ओके। सो बेटा आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। So thank you. Have a nice day. Okay. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा। Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 22 पाठ का नाम है पक्षी या चूहा। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अच्छे से पढ़ना है, कहानी अच्छी है। एक जंगल में एक चमगादड़ रहता था। देखिए बेटा, एक जंगल में एक चमगादड़ रहता था। वह दिन में तो पेड़ की डाल से उल्टा लटका रहता था तथा रात को उड़ता था। देखिए ये जो चित्र पर जो ये लटका हुआ है ना, ये चमगादड़ है। ये रात को तो उड़ता है और दिन में पेड़ की डाल से उल्टा लटका रहता था। थका होने के कारण वह अचानक पेड़ से गिर पड़ा। बहुत थका होने के कारण पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक नेवला रहता था। इस पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक नेवला रहता था। उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वह बिल से बाहर आया। जब नेवले ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आया। चमगादड़ उड़ पाता उससे पहले ही नेवले ने उसे पकड़ लिया। चमगादड़ को उड़ने की कोशिश की, उससे पहले तो नेवले ने उसको पकड़ लिया। लेकिन चमगादड़ घबराया नहीं। उसने नेवले से कहा, प्यारे नेवले, मुझे मत मारो। नेवले ने कहा, मैं तुम्हें क्यों न मारूं? पक्षी हमारे शत्रु होते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेवले ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों न मारूं, पक्षी तो हमारे शत्रु मीन्स दुश्मन होते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चमगादड़ बहुत चतुर था। उसने साहस जुटाकर कहा, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। उसने कहा कि मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। क्या इसीलिए आप मुझे पक्षी मानते हैं? कि मैं उड़ सकता हूँ इसलिए आप मुझे पक्षी मानते हैं? मुझे देखिए, मैं चूहे जैसा नहीं लगता हूँ, वास्तव में मैं चूहा ही हूँ। कि देखिए, मैं चूहे जैसा लगता नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में मैं एक चूहा हूँ। आगे देखिए बेटा, नेवले ने चमगादड़ को देखा और कहा, हाँ, तुम तो चूहे जैसे ही लगते हो, जाओ मैं तुम्हें जाने देता हूँ। नेवले ने चमगादड़ को देखा और कहा कि हाँ, तुम चूहे जैसे ही लगते हो, जाओ मैं तुम्हें जाने देता हूँ। नेवले ने चमगादड़ को छोड़ दिया। एक दिन सभी चमगादड़ उड़ रहे थे। अचानक वही चमगादड़ फिर से जमीन पर गिर पड़ा। एक दिन चमगादड़ों का जो झुंड है वो उड़ रहा था। अचानक वही चमगादड़ फिर से जमीन पर गिर जाता है। वहाँ एक दूसरा नेवला बैठा था। नेवले ने चमगादड़ को पकड़ लिया, लेकिन चमगादड़ जरा भी घबराया नहीं। उसने कहा, कृपया मुझे मत मारो। नेवले ने कहा, मैं तुम्हें क्यों न मारूं? नेवले और चूहे शत्रु होते हैं। उसने कहा कि नेवले और चूहे तो दोनों शत्रु होते हैं, वे हमें बहुत तंग करते हैं, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। चमगादड़ ने धैर्यपूर्वक कहा, लेकिन मैं तो चूहा नहीं हूँ, मैं बिल में नहीं रहता, मैं तो पेड़ों पर रहता हूँ।
मैं पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ, वास्तव में मैं पक्षी ही हूँ। मैं पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ, वास्तव में मैं पक्षी ही हूँ। नेवले ने देखा, वह सोचने लगा और बोला, हाँ हाँ, तुम लगते हो पक्षी ही हो, जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेवले ने चमगादड़ को छोड़ दिया। इस प्रकार चमगादड़ ने बुद्धिमानी से दोनों बार प्राणों की रक्षा कर ली। ठीक है, तो कहानी अच्छी है। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। कोई भी कठिनाई आने पर हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए बेटा, चतुर। चतुर मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। चतुर मीन्स बुद्धिमान। देखिए बेटा, चतुर मीन्स बुद्धिमान। अभी पढ़ा ना कि चमगादड़ ने बुद्धिमानी से दोनों बार प्राणों की रक्षा की, तो बुद्धिमानी से मीन्स क्या होता है? चतुर। बुद्धिमान मीन्स चतुर। शत्रु मीन्स दुश्मन। शत्रु मीन्स दुश्मन। साहस मीन हिम्मत। साहस मीन हिम्मत। साहस मीन्स हिम्मत। वास्तव में मीन्स असल में। वास्तव में मीन्स असल में। एक बार फिर से देखिए बेटा शब्दार्थ। चतुर मीन्स बुद्धिमान। चतुर मीन्स बुद्धिमान। शत्रु मीन्स दुश्मन। शत्रु मीन्स दुश्मन। साहस मीन्स हिम्मत। साहस मीन्स हिम्मत। वास्तव में मीन्स असल में। वास्तव में मीन्स असल में। तो बेटा ये थी हमारा पाठ। ठीक है, आपको अच्छे से पाठ को पढ़ना है और अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिखने हैं। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer hardware and software. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading software. Software क्या होता है? Software are two types. Software two types के होते हैं. Application software, second है system software. Application software and system software. Application software. Application software is designed to perform some specific type of work such as drawing, writing, playing game, etc. Application software किस लिए डिज़ाइन किया गया है? Perform some specific tasks के लिए such as drawing, writing, playing game, etc. It is used by professional. इसलिए यूज़ होता है यूज़ बाई प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, वेब मास्टर, प्रोग्रामर्स, एक्सेट्रा. किसके लिए यूज़ होता है ये? प्रोफेशनल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वेब मास्टर या प्रोग्रामर्स के लिए. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. कैसे यूज़ होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट. ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल. नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का कंट्रोल एंड मैनेज करना. ओवरऑल एक्टिविटी, जो ओवरऑल जो एक्टिविटी होती है वो के कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम में. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मैनेजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन कंप्यूटर सिस्टम. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कैसे लाइक करते हैं? एज ए मैनेजर डिफरेंट थिंग्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. इन अदर वर्ड वी कैन से डेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर is the collection of program that control overall operation and performance of the computer system. Other words में क्या कह सकते हैं? We can say system software is the collection of program का collection करता है that control the overall operation, जो overall operation को control करता है and performance को to the computer system. Operating system is the main example of system software. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मेन एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. दी मेन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर आर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन होता है टू यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर हार्डवेयर में जो एफिशिएंसी होती है उसे यूटिलाइज करना. यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर.
Second है to make the application software to do task. Some example of system software are Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS X and DOS. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के. All students, today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. Good morning students. I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach beta sentences. Sentence means वाक्य. Translate into English. TRANS trans. LATE late. Translate. INTO into ENGLISH English. Translate into English की हम हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे. किसकी बनाएंगे? हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे. ओके. नंबर फर्स्ट है नेहा एक लड़की है. नेहा एक लड़की है. क्या है? नेहा एक लड़की है. नेहा एक लड़की है. तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? नेहा इज ए गर्ल. NEHA नेहा. IS इज ए. GIRL गर्ल. नेहा इज ए गर्ल. नेहा एक लड़की है. तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? नेहा इज ए गर्ल. कैसे लिखेंगे? NEHA नेहा. IS इज ए. GIRL गर्ल. नेहा इज ए गर्ल. अब है हमारा सेकंड पार्ट है अपना पाठ याद करो. अपना पाठ याद करो. हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? अपना पाठ याद करो. बताओ इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? लर्न योर लेसन. LEARN लर्न. YOUR योर लेसन. LESSON लर्न योर लेसन. अपना पाठ याद करो. लर्न योर लेसन. LEAR लर्न. YOUR योर. LESSON लेसन. अब है नेक्स्ट नंबर थर्ड. यह मेरी कक्षा है. क्या है? यह मेरी कक्षा है. क्या है? यह मेरी कक्षा है. नंबर थर्ड क्या है? यह मेरी कक्षा है. तो हम अब इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? दिस इज माई क्लास. THIS दिस. IS इज. MY माई. CLASS क्लास. यह मेरी कक्षा है. दिस इज माई क्लास. THIS दिस. IS इज. MY माई. CLASS क्लास. दिस इज माई क्लास. यह मेरी कक्षा है. दिस इज माई क्लास. नेक्स्ट नंबर इज 4 नंबर है मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. अब हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? मैं ठीक हूँ. क्या बनाएंगे बेटा? मैं ठीक हूँ. तो I am fine. IAMM FINE fine. मैं ठीक हूँ. I am fine. IAMM FINE fine. I am fine. ओके. अब है नंबर 5. नंबर 5 पे है मैं एक छात्र हूँ. मैं एक छात्र हूँ. मैं क्या हूँ? मैं एक छात्र हूँ. मैं एक छात्र हूँ. अब हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? I am a student. IAMM a student. STUDENT. I am a student. मैं एक छात्र हूँ.
I am a student. I am a student. I will be repeat again. जीके में हमने किया सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे। नंबर फर्स्ट है नेहा एक लड़की है। नेहा एक लड़की है। नेहा इज ए गर्ल। NEH नेहा IS इज ए GIRL गर्ल। नेहा इज ए गर्ल। नेहा एक लड़की है। नेहा इज ए गर्ल। नेहा एक लड़की है। नेहा इज ए गर्ल। नंबर सेकंड है अपना पाठ याद करो। अपना पाठ याद करो। लर्न योर लेसन। LEARN लर्न। YOUR योर। LESSON लेसन। लर्न योर लेसन। अपना पाठ याद करो। लर्न योर लेसन। नंबर थर्ड है यह मेरी कक्षा है। यह मेरी कक्षा है। दिस इज माई क्लास। दिस इज माई क्लास। THIS दिस। IS इज MY माई। CLASS क्लास। दिस इज माई क्लास। यह मेरी कक्षा है। दिस इज माई क्लास। यह मेरी कक्षा है। दिस इज माई क्लास। नंबर फोर्थ है। नंबर फोर्थ पे क्या है? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। I am fine। मैं ठीक हूँ। I am fine। IAMM FINE fine। I am fine। मैं ठीक हूँ। I am fine। मैं ठीक हूँ। I am fine। नंबर फिफ्थ है मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ। I am a student। IAMMASTUDENT स्टूडेंट। I am a student। मैं एक छात्र हूँ। I am a student। देखो अभी मैंने आपको कराया जीके में सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 1 to 5। ओके, डू इन योर जीके फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।